Aero India 2025, which is 15th edition of Asia's biggest air show that was held at Bangalore, Karnataka. Okay. Next news is Vice Admiral Samir Saxena has flag off the motorcycle expedition जिसका नाम है डेयर स्क्वायर फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अयोध्या. The expedition is a part of INS Ranvijay's 37th anniversary celebration. The rally is being conducted by INS Ranvijay in associated with the Bajaj Pulsar. And the route of this rally was through Odisha, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, and it will end at Dogra Regimental Center, Ayodhya. Okay. Next news is about INS Vajrashir. It is the 6th Scorpion class submarine which was built by Mumbai based Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, and it comes under Project P75 of Indian Navy. Vajrashir is named after the sandfish, a deep sea predator of Indian Ocean. और जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है दे आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स डिजाइन फॉर स्टेल्थ ऑपरेशंस टारगेटिंग एडवर्सरी वेसल्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग. और इससे पहले जो 5 सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंडर थे वो थी आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला एंड आईएनएस वजीर. Next comes the Armed Force Veteran Day, which was celebrated on 14th of January, and on 15th January Indian Army Day was celebrated at Pune. Okay. Next comes the exercise La Paros 2025. It is the 5th edition of multi-nation exercise which was held from 16 to 24 January 2025. In this exercise, 9 Indo-Pacific nations were participated. First one is French Navy, Royal Australian Navy, third is Royal Navy. आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि कौन सी कंट्री के नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है. देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड इंडियन नेवी, इंडोनेशियन नेवी, रॉयल मलेशियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, रॉयल कैनेडियन नेवी. और इंडियन नेवी से आईएनएस मुंबई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. दिस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इंक्लूड्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ सुंडा एंड स्ट्रेट ऑफ लॉम्बोक. नेक्स्ट इज 2 indigenous built fast petrol vessels, Amulya and Aksha, was got commissioned in Indian Coast Guard, and the multi-purpose vessel Utkarsh launched in Chennai for Indian Navy. INS Utkarsh is built by L&T Shipyards for Indian Navy, and it was launched in the presence of Rajesh Kumar Singh, who is the Defence Secretary of India. Next news is Defence Minister Rajnath Singh has launched the Bharat Ranbhoomi Darshan app during the 77th Army Day celebration which was held in Pune, Maharashtra. The app is developed by the Ministry of Defence collaboration with the Ministry of Tourism. The app offers in-depth historical narratives of 77 battlefields location, providing visitors with a detailed understanding of India's wartime history. This app also includes some places like, first one is the Dras War Memorial, which signifies the Kargil War which was held in 1999. Second is Wolong War Memorial, which signifies the Battle of Wolong, which was held in the year 1962 between India and China. Third one is Tabang War Memorial. Fourth one is Longewala War Memorial, which is in Rajasthan. And also the Operation Meghdut War Memorial. Next news is Defence Minister Rajnath Singh flag off the battlefield surveillance system which is known as Sanjay. Next is the Global Firepower Index 2025. The first country in this index is United States of America. Second one is Russia.
third one is China, fourth is India, and fifth is South Korea. एक्सरसाइज गरुड़ा शक्ति जो कि कंडक्ट हुई है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच. इट इज़ द 9th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति. इसके अंदर इंडियन आर्मी के 25 पर्सनल्स जो कि थे पैराशूट रेजिमेंट्स दैट इज स्पेशल फोर्सेस, और इंडोनेशिया के कंडीशन में थे 40 पर्सनल जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके इंडोनेशिया के स्पेशल फोर्सेस को. ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है सी जानतुंग जो है जकार्ता इंडोनेशिया में. नेक्स्ट न्यूज इज वज्र शॉट. इट्स अ इंडियन मेड एंटी ड्रोन गन. ये वज्र शॉट शोकेस की गई है एग्जीबिशन स्वावलंब 2024 जो हुआ था भारत मंडप दिल्ली में. उसको डेवलप किया है चेन्नई बेस्ड बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने और ये डिप्लॉयड की है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए. वज्र शॉट का वेट है, the weight of वज्र शॉट is 3. It is radar system capable of detecting drones from 4 kilometers of distance. It is capable of jamming the drone's communication frequency. It includes the simple light emitting diode which provide real time monitoring. It has a long battery life capable of 9 hours of uninterrupted operations. Next news is exercise Vajra Prahar. It is a India-US Joint Special Forces exercises. It was its 50th edition जो कि हुआ है ऑर्चिड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएसए में. इसमें 45 पर्सनल्स फ्रॉम ईच कंट्री ऑफ स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है और इसका जो पिछला एडिशन था वो हुआ था उमरोई मेघालय में जो हुआ था दिसंबर 2023 में. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज C295 ट्रेनिंग सेंटर जो इनॉग्रेट हुआ है A4 स्टेशन आगरा में. इसका इनॉग्रेशन किया है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी ने. दिस इज इंडियन एयरफोर्स C295 फुल मोशन स्टिमुलेटर. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज महासागर. ये इसका 3rd एडिशन है. महासागर का फुल फॉर्म है मैरिटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन. इसके अंदर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है बांग्लादेश, कॉमरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेचल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया. इस एक्सरसाइज का थीम था ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रिन. It is a 3rd edition joint military exercise between India and Australia. And this exercise held at Foreign Training Node जो कि है पुणे में. एक्सरसाइज में 140 पर्सनल फ्रॉम डोगरा रेजिमेंट और 14 पर्सनल्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है और ऑस्ट्रेलियन आर्मी कंटीजेंट में 120 पर्सनल जो कि है 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट एंड 10th ब्रिगेड ऑफ 2nd डिवीजन इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. Next news is DRDO Defense Research and Development Organization conducted the first ever flight test of long range land attack cruise missile और ये टेस्ट किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि है चांदीपुर उड़ीसा में. एंड दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फ्रॉम अ मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024. It is an annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise और ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है कोनार्क कॉर्प ऑफ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी ने और ये कंडक्ट हुई है अहमदाबाद एंड पोरबंदर गुजरात में. नेक्स्ट एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास जो कि कंडक्ट किया है डिफेंस स्पेस एजेंसी ने न्यू दिल्ली में. Next exercise is exercise Wimbax 2024. It is a bilateral exercise between Vietnam and Indian Army. This is its 5th edition and it is conducted at Ambala, Haryana. In this edition, the exercise includes personnel from both the Army and Air Force of India as well as Vietnam. And 47 personnel of Indian Army has participated in this exercise. Next exercise is exercise Sea Beagle. It is its 4th edition. It is conducted at Kerala and Lakshadweep coast.
witnessed the participation over 21 agencies across 6 ministries, including Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, Indian Coast Guard, State Marine Police, Customs, BSF, that is Border Security Force, CISF, and Port Authorities and Fisheries Department. Next news is India has gifted Mozambique with 2 water-jet propellant fast interceptor crafts as a part of capacity building activities with friendly foreign nations of Indian Ocean region. And this interceptor boat has been transshipped from INS Gharial. Next exercise is exercise Sarangs 2024. It is Indian Coast Guard's largest national maritime search and rescue exercise. This is its 11th edition और ये हुई है कोची कोस्ट पे. Next exercise is exercise Agni Warrior, that is XAW 2024. It is its 13th edition. This exercise is mainly between Indian Army and Singapore Army. This exercise conducted at Field Firing Range in Devlali, Maharashtra. It is an artillery exercise in which 182 persons from Singapore RT has participated, and from Indian contingent 114 persons from regiment of RT has been participated in this exercise. Next news is the 4th edition of India Malaysia joint exercise Harimo Shakti has been conducted at Bentong Camp, Pahang district जो है मलेशिया में. एक्सरसाइज हरिमो शक्ति में इंडियन कंटीजेंट से 78 पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है जो थे महा रेजिमेंट से, और मलेशियन कंटीजेंट में 23 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया है जो थे रॉयल मलेशियन रेजिमेंट से. ओके, और ये इसका 4th एडिशन था. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडियन नेवी. इंडियन नेवल शिप INS निर्देशक, द सेकंड शिप ऑफ सर्वे वेसल large petrol was commissioned into Indian Navy. Okay. The next exercise is exercise Sinbax. It is the first edition जो कि हुई है इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच, और ये ट्रेनिंग कंडक्ट हुई है फॉरेन ट्रेनिंग नोट पुणे में. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. It is the trilateral air combat exercise of India, France and UAE जो कि कंडक्ट हुई है ओवर द अरेबियन सी. आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइए कि इंडियन एयरफोर्स के किस किस प्लेन्स ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सिलनेक्स. इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. This exercise is conducted from 17 to 20th December 2024. एक्सरसाइज सिलनेक्स में पार्टिसिपेट किया है INS सुमात्रा में जो कि एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और श्रीलंका से SLNS सयूरा ने पार्टिसिपेट किया है जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है. एंड एक्सरसाइज सिलनेक्स कंडक्ट हुई है ईस्टर्न नेवल कमांड में जो कि है विशाखापट्टनम. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सूर्य किरण. It is an exercise between Indian Army and Nepal Army जो कि कंडक्ट हुई है सलजंडी नेपाल में, और ये उसका 18th एडिशन था. इम्पेक्स कंडक्ट की जाती है बिटवीन कंट्रीज रशिया, जर्मनी एंड स्पेन. ओके, ये कंडक्ट हुई है मेडिटेरियन सी में. ओके, then comes next news, that is FWD 200B. FWD stands for Flying Wedge Defense and Aerospace. FWD 200B is India's first indigenous unmanned bomber aircraft. ये UAV है. ओके, इसका फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, और इट इज़ अ medium altitude long endurance UAV, that stands for MEAL, or it has a wingspan of 5 meters and range of 800 kilometers. FWD 200B के features है carry surveillance payloads and missiles up to 30 kgs capacity. Okay.
Next news is Exercise Varuna. Exercise Varuna is a bilateral naval exercise between India and France. So ये कंडक्ट हुई है मेडिटेरियन सी में फ्रॉम सितंबर 2 to 4 2024 और इंडियन नेवी का P-81 एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज अग्नि 4 मिसाइल. अग्नि 4 मिसाइल इज अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है टेस्ट रेंज जो चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा में है. अग्नि 4 की जो मिसाइल है इसका रेंज है अप टू 4000 किलोमीटर्स एंड इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स आल्सो. जो अग्नि 5 है ये मिसाइल का रेंज है 5000 किलोमीटर्स. ओके. नेक्स्ट न्यूज इज INS मालपे एंड INS मुल्की. INS Malpe and INS Mulki are anti-submarine warfare shallow water crafts. जिसका शॉर्ट है ASW-SWC. ये इंडियन नेवी में कमीशन हुई है. इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने और ये 4th and 5th शिप है अंडर 8 ASW-SWC प्रोजेक्ट्स जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए बनाई है. नेक्स्ट न्यूज इज Kalvari Escape Training Faculty, that is Vinetra. It aims to improve the escape skill of crew members aboard at Kalvari class submarines. This faculty will use to provide both the basic and refresher escape training, ensuring the submariners are proficient in escaping procedures during the distress situation. The faculty name Vitarna meaning trainer. It represents a crucial advancement in safety, operational readiness and training for Indian Navy. ये विनेत्र इनॉग्रेट हुई है INS सतवाना में जो है विशाखापट्टनम. नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास. इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA एंड इसका 20th एडिशन रिसेंटली हुआ है एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड राजस्थान में. ओके. जिसके अंदर इंडियन आर्मी के 600 पर्सनल इंक्लूडिंग राजपूत रेजिमेंट्स और US आर्मी का 600 पर्सनल रिप्रेजेंट फ्रॉम 1/24 बटालियन ऑफ 11th एयरबोर्न डिवीजन. नेक्स्ट न्यूज इज एक्सरसाइज ककाडू 2024. इट इज 16th एडिशन ऑफ बाइनियल exercise led by Royal Australian Navy and supported by Royal Australian Air Force. इसमें इंडियन नेवी की P-81 एयरक्राफ्ट हैज पार्टिसिपेटेड. ओके. दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व 3000 पर्सनल्स फ्रॉम 32 नेशंस इंक्लूडिंग 13 वॉरशिप्स एंड अ सबमरीन एंड मोर देन 10 एयरक्राफ्ट्स. ओके. और ये हुई है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट कम्स द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज. इट इज़ अ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एंड जैगवार फाइटर प्लेन्स के साथ C-17 ग्लोबमास्टर 3 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है इसने पार्टिसिपेट किया है. दिस इज द 7th एडिशन और ये कंडक्ट हुई है एयरफोर्स बेस मशीरा ओमान में. नेक्स्ट न्यूज इज नाविक सागर परिक्रमा 2. इंडियन नेवी की 2 women ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डीना K INSV तारिणी को लेके नाविका सागर परिक्रमा 2 करने वाले हैं जिसका फ्लैग ऑफ होने वाला है गोवा से. फिर ये मैंने रूट यहाँ पे आपको बता दिया है. सो आपको ये रूट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस आपको इन दोनों का नाम, ये दोनों ऑफिसर्स का नाम एंड ये कौन सी परिक्रमा है, दैट इज़ नाविका सागर परिक्रमा 2. नेक्स्ट इज INS तलवार जो गई है मोम्बासा केनिया टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज एंड रिफ्रेम इंडियाज कमिटमेंट टू कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल ग्रोथ. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो UPSC है वो पूछ सकता है कि जो INS तलवार है वो कौन से कंट्री में उसने विजिट किया है. ओके. प्रीवियसली भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं NDS CDS और कैट में. सो हमें सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं याद करनी है, हमें ये भी याद करना है कि कौन सी शिप कहाँ गई है. नेक्स्ट न्यूज इज इंडियन आर्मी होस्टेड 2 मेजर इवेंट्स हिम ड्रोन एथॉन एंड हिमटेक 2024 लेह एंड लद्दाख में जो इंडियन आर्मी ने ये होस्ट की है. दिस इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द and evaluate the capabilities of drones and other advanced technologies suited for high altitude battlefield conditions. और जो हिमटेक
2024 का फोकस था on cutting edge equipments to enhance the operational capabilities of Indian Armed Forces in high altitude areas. Next is Abhed. Abhed is advanced ballistic for high energy defeat. Abhed is a lightweight bulletproof jackets designed by DRDO and researchers from IIT Delhi. इन्होंने ये lightweight bulletproof जैकेट बनाया है फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट। ये जो जैकेट है ये क्रिएट किया है पॉलीमर एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल जो प्रोवाइड करता है 360 डिग्री प्रोटेक्शन with minimum weight of 8.2 kgs and 9.5 kgs for different BIS levels. Next is exercise Kazin. It is a joint exercise between India and Kazakhstan military और ये इसका 8th edition था। ये हुआ है सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन औली उत्तराखंड। इसमें इंडियन आर्मी के 120 पर्सनल्स जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के थे along with the persons from Indian Air Force. Kazakhstan contingent mainly consists of persons from land force and the airborne assault troopers. Next news is DRDO Defense Research and Development Organization has successfully conducted 3 flight tests of 4th generation very short range air defense system. This system is a man portable air defense system that has been developed indigenously to intercept and neutralize the aerial threats at short range. और ये टेस्ट हुआ है पोखरण फील्ड रेंजेस राजस्थान में। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी along with Royal Navy of Oman has planned some exercises including the harbor interaction joint exercises and training exchanges, professional interaction and friendly sports fixtures between the two navies. और इसमें पार्टिसिपेट किया है INS तीर, INS शार्दुल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वीरा ने और ये तीनों शिप गई है मस्कट ओमान। नेक्स्ट इज इंडियन एयरफोर्स का रेजिंग डे था। इट इज देयर 92nd रेजिंग डे जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। दिस ईयर इंडियन एयरफोर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एट मरियाना बीच चेन्नई। नेक्स्ट इज the first ship of the multipurpose vessel project Samarthak built by L&T Larsen & Toubro Shipyard for the Indian Navy. Next is Exercise Malabar 2024. The 20th edition of Exercise Malabar has been hosted by Indian Navy at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, यूनाइटेड स्टेट ने, जापान ने एंड इंडिया ने। इसमें इंडिया की INS दिल्ली, INS तबार, INS कदमत, INS कामोर्ता, INS शक्ति, INS सतपुरा एंड P81. Next comes exercise IBSAMAR 2024. It stands for India, Brazil, South Africa Maritime और ये इसका 8th एडिशन था जो कि कंडक्ट हुआ है फ्रॉम 6 to 18 अक्टूबर। इसमें इंडियन नेवी की INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया है और ये हुआ है सिमंस टाउन, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट इज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड द देश का वल्लभ स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मेजर रालिंगो बॉब खातिंग म्यूजियम ऑफ वैल्योर एट तवांग, अरुणाचल प्रदेश। 76th NCC डे, नेशनल कैडेट कोर डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 24 और आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि NCC का मोटो क्या है। ओके विजय दिवस जो कि सेलिब्रेट होता है 16 दिसंबर एवरी ईयर ऑन हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ इंडिया इन 1971 वॉर एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश।